हेलो एंड वेलकम टू B3 कार्स। दिस इज द मारुति सुजुकी जिमनी और इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर का डिटेल्ड वॉक अराउंड देंगे एंड वी विल आल्सो टेल यू अबाउट इट्स इंजन स्पेसिफिकेशंस एंड डायमेंशंस। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। Talking about the exterior design of the Jimny, there are certain elements जो इसमें बहुत जिमनीश है. For example, this clamshell bonnet, the round headlamps, the vertical slats that you are seeing in this grille. अब इस ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है. This is done in grey color. There's a lot of chrome over here. This adds to some richness into the car's exterior design. Talking about the headlamps, these are circular units और इनमें projector type lamps हैं. These are LED units, लेकिन इसके टर्न इंडिकेटर्स जो हैं these are bulb type और इसमें fog lamps भी आते हैं and these are halogen bulbs only. Now talking about the bumper itself, it is very chunky. It has to be chunky because this car is meant to off-road. लेकिन इसके बम्पर पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे headlamp washers भी हैं. So if you are going off-road, अगर यहाँ पे मिट्टी आती है, कुछ आता है that goes onto the headlamps, you can use the headlamp washers to clean it off. Now अगर हम साइड डिज़ाइन की बात करें so the biggest change here is that this is the 5-door Jimny. एंड दिस बेसिकली इज़ द हाईलाइट ऑफ द डिज़ाइन जिसकी वजह से जिमनी को यहाँ पे स्ट्रेच किया गया है. सो जिमनी के इंटीरियर में जाके बाद में देखेंगे कि इसमें कितनी स्पेस है, बट लेट मी टेल यू कि इसका डिज़ाइन जो है वो साइड से काफ़ी स्क्वेरिश है एंड द स्क्वेरिश डिज़ाइन इज़ कॉम्प्लीमेंटेड बाय द स्क्वेरिश व्हील आर्चेस एज वेल. एंड द वन थिंग टू नोट हियर इज़ कि यहाँ पे फ्रंट में ओवरहैंग्स बहुत छोटे हैं. लाइकवाइज इसके रियर में भी ओवरहैंग छोटा है और ओवरहैंग छोटे होने से कार की ऑफ रोड क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है. So even if you will see it at the rear, the overhang is really small. Now talking about the wheels of this car, तो इसमें 15-inch alloy wheels आते हैं and these get a lot of thick sidewall over here, which is also useful when you off-road. इसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे इसके ऊपर thick cladding है that you can see on the wheel arches. There's also thick cladding over here on the sides, underside पे. और जिमनी में भी जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो इसके डोर पे नहीं है बिकॉज डोर हैंडल्स आर फ्लैप टाइप ओनली. रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड पे एंड देयर इज आल्सो द की होल ओवर हियर फॉर द पैसेंजर एज वेल. लाइक ऑलवेज जिमनी के ORVMs भी काफ़ी चंकी हैं एंड दीज आर बिग एंड स्क्वेरिश which complement basically the overall squarish theme. I for one personally find the dual tone exterior of the Jimny very appealing. So इसकी roof अलग से black color में है. Now if we come to the rear of the Jimny, the one thing that is worth noting over here is कि इसमें spare wheel जो है वो boot पे mounted है and this is a very SUV-ish thing to have in the market. Rear design की भी बात करें तो it is very squarish in terms of its overall proportions. इसका boot कुछ इस तरह से open होता है. It is hinged to the side और boot space इसकी 208 लीटर्स है. आप नोटिस करेंगे कि इसकी rear seat जो है वो split होती है. So in case you want more boot space तो वो मिल जाती है. Talking about some of the features in the boot, तो यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट मिल जाएगा. There is also the boot lamp and boot में देख के ऐसा लगता है that you can store small luggage bags over here जो आप cabin bags जिनको बोल सकते हैं जो फ्लाइट में यूज़ होते हैं. अब at the rear, Jimny gets turn indicators which are integrated into its tail lights and these are bulb type units and so are the tail lights. Parking sensors are situated right below the tail lamps over here and over there itself. So this was most about the exterior design of the Jimny. आपको जिमनी का एक्सटीरियर डिज़ाइन कैसा लगा? You tell us your thoughts in the comment section. हम जब तक इसके इंटीरियर में चलते हैं. Now we are inside the Jimny और इसमें जैसा आप नोटिस कर सकते हैं there is the all black interior in the car. कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर वेरी SUV स्पेसिफिक. फॉर एग्जांपल इसका डैशबोर्ड जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है एंड जैसा आजकल कार्स में आता है आप नोटिस करेंगे एंड एवरीथिंग इज़ वेरी अपराइट. सो कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको राउंडेड एलिमेंट्स मिलेंगे. डैशबोर्ड पे सबसे ऊपर यू विल गेट दिस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसके नीचे एयरकॉन वेंट्स आ जाते हैं. साइड एयरकॉन वेंट्स जो हैं वो राउंड टाइप हैं लेकिन सेंटर एयरकॉन वेंट्स आपको रेक्टेंगल शेप में मिलेंगे. एयर वेंट्स के नीचे यू विल गेट द AC कंट्रोल्स ओवर हेयर और इसके नीचे यहाँ पे आपको मिलेंगे फ्रंट पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स एंड देयर इज ऑप्शन टू स्विच ऑफ द ट्रैक्शन और हिल स्टार्ट और स्टॉप द हिल डिसेंट कंट्रोल ओवर हेयर. डैशबोर्ड पे एक चीज़ और है, देयर इज ऑल्सो दिस ग्रैब हैंडल ओवर हेयर जो फ्रंट पैसेंजर के है. दिस इज़ एन एक्सट्रीमली यूजफुल थिंग टू हैव
इन व्हीकल्स जिनमें ऑफ रोड कैपेबिलिटी होती है। इसके अलावा अगर हम स्टोरेज स्पेस की बात करें तो यहाँ डैशबोर्ड में एक फ़ोन रखने की जगह है एंड देयर इज़ ऑल्सो स्टोरेज स्पेस अंडर इट, जहाँ पे इसके ग्लव बॉक्स में आप ओनर्स मैनुअल रख सकते हैं, बट ऑल्सो यू कैन कीप अ वेरी स्मॉल बॉटल ओवर हेयर। इसके डोर्स में भी एक स्पेस है, स्टोरेज स्पेस है, बट यहाँ पे आपको मोस्टली फाइल्स रखने की ही जगह मिलती है। सो दिस वाज मोर अबाउट द स्टोरेज स्पेस। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे भी एक छोटी स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे आई थिंक यू कैन कीप चेंज और समथिंग। इसके अलावा यहाँ पे एक USB पोर्ट है एंड ड्राइवर के लिए यहाँ पे कई सारे फीचर्स हैं। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है यहाँ पे एंड उसके अलावा यू ऑल्सो गेट दिस फीचर ओवर हेयर जिससे हेडलैम्प्स को इसके वॉश कर सकते हैं, जो हमने बाहर देखा था। इंजन स्टार्ट स्टॉप आता है, इसके ORVMs को ऑपरेट करने के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं एंड दिस इज़ द डोर दैट यू आर सीइंग ओवर हेयर। सो यू कैन नोटिस कि इसमें फाइल्स रखने की जगह है प्राइमरीली। सो ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज़ द MID ऑफ द कार और बाकी पार्ट जो है ये बेसिकली एनालॉग टाइप कंट्रोल्स, आप एनालॉग टाइप आपको रीडिंग्स मिलेंगी यहाँ पे स्पीड और टैकोमीटर की। So this was most about the frontal part of the interior, but there's one thing that you must note over here कि इसका gear lever जो है ये बिल्कुल you can sense that it is from an era before जब बहुत ही rough SUVs आती थी। So it is long, it is stick type and it is a 5-speed unit। इसके पीछे यहाँ पे आपको हाई और लो रेशो को engage करने का gear lever मिलता है। This is a short gear lever और जिमनी के rear पावर विंडो के कंट्रोल्स भी आपको फ्रंट में यहाँ इसकी फ्रंट पार्किंग ब्रेक के अराउंड ही मिलते हैं। दीज आर द कंट्रोल्स फॉर रियर पावर विंडोज़। और इसके अलावा यहाँ पे इसके रियर में आपको 2 कप होल्डर्स भी मिलते हैं, बेसिकली रियर पैसेंजर्स के यूज़ करने के लिए, लेकिन अगर आप फ्रंट में भी बैठे हैं सो यू कैन कीप अ बॉटल ओवर हेयर इन जनरल। ओवरऑल अगर मैं इसके सीटिंग कम्फर्ट की बात करूँ तो फ्रंट सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग इट इज़ कम्फर्टेबल एंड आई विल नाउ एडजस्ट दिस सीट अकॉर्डिंग टू माई हाइट सो दैट हम ये चेक कर सकें कि इसके रियर में कितनी स्पेस है। सो अब सीट मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी है। अब चलते हैं इसके रियर में। सो जिमनी के इंटीरियर में रियर में चेक करने से पहले इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसकी रियर सीट 2 एंगल्स पे एडजस्टेड है। अभी ये अपराइट एंगल है और एक इसका ये रिक्लाइंड एंगल है। टॉकिंग अबाउट द इनग्रेस इन द कार, तो यहाँ पे मुझे हल्का सा क्लाइंब करने की ज़रूरत पड़ी है एंड आई थिंक किसी भी यंगस्टर के लिए इट विल बी वेरी इजी टू क्लाइंब इनटू द कार। Now talking about the rear seat of the car, so इसकी फ्रंट सीट मैंने 5 feet 8 inch हाइट के बंदे के लिए एडजस्ट की है एंड आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ नी रूम ओवर हेयर। और फ्रंट सीट के नीचे मेरे पास यहाँ पे पैर स्लाइड करने की भी जगह है। सो एज फार एज स्पेस फॉर 1 person is concerned, I think it is fairly fine to sit in the car. Talking about the headroom, I have it in decent amount over here और यहाँ पे मुझे because the cars has a squarish design, तो ऐसी फीलिंग आती है that you have enough headroom over here. एंड इट इज़ वर्थ नोटिंग कि जिमनी के रियर पैसेंजर्स के लिए 2 जगह पे पावर विंडोज़ हैं। वन इज़ दिस स्विच दैट यू आर सीइंग ओवर हेयर जो यहाँ पे डोर पे है एंड द अदर स्विच इज़ द वन दैट वी शोकेस्ड ऑन द सेंटर कंसोल जो ड्राइवर के पास आगे ऑप्शन था। सो ये दोनों जगह से रियर पावर विंडोज़ जो हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं। अब रियर पैसेंजर्स के लिए इनफ स्पेस है कार में और उसके अलावा यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स भी हैं, तो आई एम सिटिंग ओवर हेयर क्वाइट कंफर्टेबली एंड बिकॉज दिस इज़ अ कार दैट यू कैन यूज़ फॉर कम्यूट, तो आई थिंक यहाँ पे 4 लोग इजीली कम्यूट कर सकते हैं। सो ओवरऑल जिमनी का केबिन हमें प्रैक्टिकल लगा। अगर आप जिमनी यूज़ कर रहे हैं और इसको डेली पर्पज़ के लिए भी चलाते हैं तो यहाँ पे 4 लोग बैठ के जा सकते हैं। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द जिमनीज केबिन? यू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अब इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। जिमनी में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता है जो 105 PS की मैक्सिमम पावर और 134 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कंपेयर टू ब्रेजाज इंजन ये 2 PS ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है और 3 न्यूटन मीटर कम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जिमनी में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अलावा एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आता है। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सेम पावर ट्रेन जो ब्रेजा में मिलती है। दिस वाज ऑल अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशंस ऑफ द जिमनी। चलिए अब इसके एक्सटीरियर डायमेंशंस देखते हैं। तो जिमनी इज अ B2 सेगमेंट SUV और इसकी ओवरऑल लेंथ 4 मीटर से थोड़ी सी कम है। Talking about the width of the car, ये 1645 mm है, so it is significantly narrower compared to the Thar. इसकी maximum height 1720 mm है और wheel base 2590 mm है, which is 40 millimeters more than that of the Thar. Talking about the ground clearance, so ये है 210 millimeter, which is
16 millimeter less than the Thar, लेकिन Jimny का departure angle which is 50 degrees, this is 14 degrees more than the Thars, and that is because of the smaller rear overhang that you've seen on the car. इसका रैम्प ओवर एंगल 24 डिग्रीज है विच इज़ अराउंड 2 डिग्री स्मॉलर देन दैट ऑफ द थार, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 40 लीटर्स है. जिमनी में 15 इंच अलॉय व्हील्स आते हैं और इसकी बूट स्पेस 208 लीटर्स है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द डायमेंशंस ऑफ द जिमनी. ये कार हमें देखने में इट इज़ अ स्मॉल कार डेफिनेटली, बट इट इज़ very true SUV in all senses. It is a 4x4 vehicle and we think it is that 4x4 vehicle जिसे आप अपने daily commute में भी शायद use कर पाएंगे because of the practicality that it offers, and we'll be driving this car soon to tell you कि ये आपकी daily commute में कैसी रहेगी. Till then, do watch other videos of V3 Cars and subscribe to our channel to get the latest updates from Auto Expo. Thanks for watching this video. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.